طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا اليقين. طلع البدر علينا طلع البدر علينا. یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچے خدا کا نام بلند ہوتے ہی ہر مصنوعی رب، جھوٹا خدا اور بناوٹی معبود لرز گیا. قریش مکہ، یمن، شام اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے پیغام کا تذکرہ چھیڑتے تو سننے والے آپ ہی آپ سوچ میں پڑ جاتے. ان کے دل محسوس کرنے لگتے کہ انقلاب جیسے ہماری طرف بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے رد عمل سے باہر نہیں رہ سکتے. ان تمام مخالفتوں، دشواریوں اور مشکلوں کے باوجود خدا کا نبی، خدا کا سچا نبی حق کا اعلان کر رہا تھا. کوئی مخالفت اس کے عزم محکم میں ذرہ برابر ڈھیل پسند نہ کر سکتی تھی. صبر، استقامت اور حق و صداقت کا اس ذات کوہ گرا تھی. یہ تمام طوفان بے اثر ثابت ہوئے. اس کی رسالت کا چراغ آندھیوں کی گود میں بھی جلتا رہا اور تیزاب کے دھارے میں بھی اس کی سعادت کا پودا نشو و نما پاتا رہا. نصرت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی. قریش مخالف ہونے کے باوجود بڑے شش و پنج اور ذہنی کوفت میں بھی مبتلا ہوتے. ان کا ضمیر چٹکی لیتا کہ نادانو، جسے تم بچپن سے سچا کہتے آئے ہو اور جس کی زبان سے کسی کان نے ایک حرف بھی غلط اور کذب آمیز نہیں سنا، آج اسے کس دلیل کی بنا پر جھٹلاتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال تک سچ بولتا رہا ہو اور اب ایکائک جھوٹ بولنے لگے، اور وہ بھی کسی دنیاوی منفعت اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں؟ وہ تم سے مال و دولت نہیں چاہتا، سرداری اور بادشاہی نہیں چاہتا، صرف ایک کلمہ توحید پر تم کو جمع کرنا چاہتا ہے. مگر جب باپ دادا کے عقائد اور قوم کے رسم و رواج کا خیال آتا ہے تو ضمیر کی یہ آواز دب کر رہ جاتی ہے. قریش نے مل جل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ جب خدا کے سچے نبی ہیں اور خدا آپ کی ہر بات مانتا ہے تو مکہ کے سامنے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے سارے شہر کو محصور اور ڈھانپ رکھا ہے، انہیں اپنے خدا سے کہہ کر ہٹوا دیجیے تاکہ ہمارے شہر کے آس پاس کھلی کھلی فضا ہو جائے. 2. عراق و شام کے باشندے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ملکوں میں دریا موجیں مارتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں کی زمین شاداب ہے. آپ بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ چند نہریں ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائے. نمبر 3. آپ کہا کرتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اپنے خدا سے کہیے کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دے. اور ہاں دیکھیے، ایک بات کا خاص خیال رہے، وہ یہ کہ ہمارے آبا و اجداد میں قصی بن کلاب کا تو جیسے بنے ضرور زندہ کروا دیجیے. قصی ہمارے قوم کا سردار تھا. اس نے قریش کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے اور وہ سچ بولا کرتا تھا. بس ہم قصی سے آپ کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے کہ محمد ابن عبداللہ کیا سچ مچ خدا کے رسول ہیں؟ قصی جھوٹ نہیں بول سکتا. حقیقت حال اور صورت حال واقعہ کو وہ ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دے گا. اپنی اولاد کو قصی جیسا شریف انسان دھوکے اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا. نمبر 4. اور ہاں، محمد، زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تمہیں خود بازاروں میں جانا پڑتا ہے. اپنی پیٹھ پر لاد لاد کر غلہ اور سودا سلف لاتے ہو. تلاش معاش کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ بھی کرنا پڑتی ہے. تمہاری حالت بھی درست نہیں ہے اور تمہارا مکان کچا ہے، ٹوٹا پھوٹا، نہ گرمی میں آرام دہ اور نہ سردی میں ضرورت کے لیے کافی. تو پھر تم اپنے خدا سے کہو کہ مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے قادر مطلب میرے لیے عالیشان محل بنا دے، میرے ارد گرد سونا چاندی جمع کر دے اور میری تفریح کے لیے باغ لگا دے. اور یہ بھی عرض کرو اپنے خدا سے کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے کہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے. قریش کی خام خیالیوں میں اور کم نظری کے پورے ترجمان ہیں. ان کے یہ مطالبے ان کے دل و دماغ کی رنگینیاں اور خوش سامانیاں چھائی ہوئی تھی.
ऊंचे ऊंचे महलों, सोने चांदी के ढेरों और लहलहाते बागों को ही इन्होंने सब कुछ समझ रखा था। शराफत की कदर कीमत वो पहचानते ही न थे। उनको नहीं मालूम था, अगर मालूम था तो वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे कि इज्जत नफ्स, शराफत, सच्चाई और इंसान की बड़ाई के लिए कसर व ईमान का तमतराक और सीम व ज़र की खीरा निगाहियाँ ज़रूरी नहीं हैं। माल और दौलत के पैमाने से किसी इंसान की अजमत का नापना सबसे बड़ी जहालत और हमाकत है, और ये भी कुदरत की सुन्नत रही है कि हक व सदाकत के चराग शुरू में टूटे फूटे मकानों और खस व पोश झोपड़ियों ही में जलते रहे हैं। कुरैश के इन मुतालबों के जवाब में ज़बान नबुव्वत यूँ गोहर फशा हुई, मैं बातों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा गया। मैं अपने खुदा से ऐसा सवाल हरगिज़ न करूँगा। मुझे अल्लाह ताला ने खुदा की रहमतों का खुशखबरी देने वाला और उसके अजाब से डराने वाला है बनाकर भेजा है। तुम मेरी बात मान लोगे, दीन और दुनिया में से खुद तुम्हारा फ़ायदा होगा, वरना मैं सब्र करूँगा और खुदा के फ़ैसले का मुंतज़िर रहूँगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर कुरैश हैरत के साथ एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर तामुल के बाद वो बोले, तुम्हें अपने सच्चे होने का इतना ज़ौम है और खुदा पर बहुत नाज है, तो तुम आसमान का एक टुकड़ा ही हम पर गिरा दो। उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा चाहे तो ऐसा कर सकता है। उस पर वो लोग बोले कि जब तक तुम ऐसा न करोगे तो हम तुम पर ईमान लाने से रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खुदा के इख्तियार में है, वो चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद मक्का के रहने वाले बड़े ही सख्त दिल और सियाह बातिन थे। कहा जा सकता है कि उनके दिल पत्थर की तरह सख्त, मगर बास पत्थरों से पानी रिसने लगता है, यहाँ तक कि चश्मे फूट निकलते हैं। और यहाँ तो कुरैश के दिलों में इतनी भी सलाहियत न थी। कुदरत ने उनकी समा कबूल से भी महरूम कर दिया था। हिदायत की रोशनी देखकर उनकी सियाह बातिनी और तारीकी ज़मीर को उल्टी वहशत होती थी। उनके दिलों में सचमुच ताले पड़े हुए थे। आंखें थी मगर न थी, कान थे मगर सुनते न थे, और दिलों में शऊर फ़िक्र की इस्तेदाद ही बाकी न रही थी। नादानी के मुजस्समे, जहालत के पैकर और गुमराही की चलती फुरती मूर्तें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नादानों को तरह तरह से समझाया। दिल नशीन से दिल नशीन अंदाज़ बयान उनके लिए सर्फ कर दिया। अज़ाब इलाही के डरावे को बार बार दोहराया। उनसे कहा कि यह दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिन की है, इस पर इन्हिसार न करो। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। मरने के बाद अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को फिर से ज़िंदा करेगा और क़यामत के दिन हर नफ्स के आमाल पर मुहासबा होगा। मुशरिकों, काफिरों और फासिकों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई है, जहाँ बड़े दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे। और यही नहीं, पिछली कौमों की तबाही और हलाकत की दास्तानें भी सुनाई कि फ़ला कौम खुदा की नाफरमानी के सबब इस तरह तबाह हुई कि उनके चेहरे और रहने के मकान तक पहचाने न जाते थे। अल्लाह ताला के अजाब ने जब उनको आकर पकड़ा तो कोई ताकत बचाने के लिए आंधी के एक झोंके और अजाब इलाही की एक चीख ने इन्हें मौत की नींद सुला दिया। हिदायत और भलाई की इन बातों का कुरैश ने उल्टा मजाक उड़ाया। नादान आपस में कहते कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पर किसी ने जादू कर दिया है। कोई रायज़ानी और कयास आराई करता कि मोहम्मद जिसको वही बताता है बस ज़्यादा से ज़्यादा आला दर्जे की शायरी है और इसमें कुछ कहानत की भी झलकियाँ नज़र आती हैं। सदाकत का आफ्ताब तुलूब हो चुका था, मगर ये अंधे इस रोशनी से महरूम थे। कुरैश मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपकी दुश्मनी में इंतहाई शदीद और बेबाक थे, मगर इस अदावत के बावजूद उनके दिल अंदर से सहमे हुए भी थे। उनके ज़मीर कहते थे कि हक़ की आवाज़ किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। इस पयाम में सदाकत में गैर मामूली ताकत पाई जाती है, मुखालिफतें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस मजलूमियत में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले बहुत हिम्मत नहीं हारे। वो अपने अज़्म में इंतहाई मुखलिस और कमाल दर्जे के मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम हैं। इस जज्बे के लोग नाकाम नहीं रह सकते। हिदायत की रफ्तार शुरू में तेज़ न थी, सदाकत आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही थी, मगर जिस दिल में यह आवाज़ घर कर लेती फिर दुनिया की कोई ताकत इस दिल को अपनी तरफ झुका न सकती थी। वो शख्स दुनिया के हर फ़ायदे और नफ़ा को लात मार कर बस खुदा और रसूल का हो लेता। उनकी ज़िंदगी इस्लाम बनकर रह जाती। इस्लाम की खिदमत उसे हर तरफ से बेगाना बना देती। वो सहाबा जो साबिकुनुल अव्वलून के शर्फ सारे मुमताज़ हैं, उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, चंद गिने चुने लोग जैसे आटे में नमक, मगर इस्लाम की खातिर हर कुर्बानी और एसार के लिए हमतन तैयार। खिताब के नामवर बेटे उमर भी इन खुशनसीब अफराद में से थे जिनको बहुत पहले इस्लाम की दौलत मैसर हुई। इस्लाम लाने से कबल उमर इब्न खिताब दीन हक के सख्त दुश्मन थे। एक दिन तलवार गले में डालकर घर से निकले कि आज हाकिम वदन मोहम्मद को कत्ल करके इस झगड़े का ही खात्मा किए देता हूँ। आदमी थे शुजा और बेबाक, बड़े बड़े बहादुर उमर से घबराते थे।
कुफ्फार कुरैश उमर के इस अज़्म को देखकर बहुत खुश थे कि उमर की तलवार से पैगंबर इस्लाम को पनाह न मिल सकेंगी। इब्ने खिताब की तैक बेनियाम होने के बाद इस वक्त तक नियाम की आफियत में से आशना नहीं हुई जब तक अपने दुश्मन के लहू में खूब तीर न ले। उमर अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर वापस नहीं आएगा। हमारे माबूदों की बरकतें उसके साथ हैं। मोहम्मद कब से हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, अब उसकी सज़ा उन्हें मिलकर रहेंगी। उमर को तैक बकफ देख कर कुफ्र के होठों पर हंसी खेल रही थी। अबू जहल मुसरत के मारे झूमा जाता था। उतबा की आंखों में खुशी चमक रही थी और अबू लहब इस ख्याल से शादमा था कि अब कोई दम में इब्न अब्दुल्ला का काम तमाम हुआ जाता है। बस उसके कत्ल होते ही उसका लाया हुआ दीन भी पारा पारा हो जाएगा। उमर अपनी बेबाक जवानी के नशे में शर्मसार था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के साथियों में मेरा कोई मुकाबला न कर सकेगा। वो तेज तेज चल रहा था। इतने में एक सहाबी रास्ते में मिले। उमर के इरादे की इतला पाकर बोले कि उमर, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनवी भी मुसलमान हो चुके हैं। उमर इस इत्तला के पाते ही बहन के घर पहुंचे। तैवर बहुत खुशमगीन थे, आंखों से लहू बरस रहा था। कुफ्र की हिमायत के जोश ने रुखसारों को तमतमा कर लाल भभूका बना दिया था। इब्ने